خوش آمدید عجیب کہانیاں میں۔ آج میں اس ہفتے کی سب سے عجیب، پراسرار اور ناقابل یقین کہانیاں آپ کے لیے ایک جگہ پر لایا ہوں۔ آخر تک ضرور رہیے گا۔ یقین کریں آخری کہانی سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سمندر کے 11ویں دن خواجہ نعمان نامی ایک مصری تاجر کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جو ناممکن لگتی تھی۔ ایک عورت اکیلی ایک سنسان جزیرے پر پیٹ سے تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ روم عظیم کی ملکہ ہے، بادشاہ موکشا کی بیوی، اور اسے یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ لیکن خواجہ کو کیا پتا تھا کہ یہ لمحہ فارس کی سب سے بڑی داستانوں میں سے ایک کا آغاز بننے والا ہے۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے جب محمد علی نقبہ الممالک نامی ایک شاہی قصہ گو نے یہ پرانی داستان قاجار بادشاہ ناصر الدین شاہ کو سنانی شروع کی۔ رات پر رات شاہ سنتا رہا، مگر ساتھ میں اس کی بیٹی بھی سن رہی تھی، شہزادی فخر الدولہ۔ امیر ارسلان کے کارناموں نے اسے اس قدر گھیر لیا کہ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ محمد نے اپنی زبانی داستان کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا، مگر شہزادی نے کچھ ایسا کیا جو واقعی حیران کن تھا۔ اس نے پوری داستان خود اپنے ہاتھ سے لکھ ڈالی اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دی۔ جو داستان اس نے بچائی وہ اسی 11ویں دن سے شروع ہوتی ہے جب خواجہ کا تجارتی جہاز ہندوستان کی طرف کھلے پانیوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ خواجہ نے لنگر ڈالنے کا حکم دیا تاکہ آرام کر سکے، مگر جو اسے ملا وہ کوئی عام منظر نہیں تھا۔ وہ عورت اس ساحل پر بے بس کھڑی، ادھوری امید لیے، ملکہ تھی قسطنطنیہ کے بادشاہ موکشا کی، اس عظیم شہر کی جسے فارسی لوگ راوم کہتے تھے۔ اور اس کے پاس ایک کہانی تھی کہ ایک ملکہ کیسے ٹوٹی پھوٹی حالت میں ایک بھولے بسرے جزیرے پر آ پہنچی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ دھوکے، جادو اور ناممکن سفروں کی ایک ایسی داستان بن گئی جو سانس روک دے۔ امیر ارسلان کی یہ مائکاوی صرف ایک تاجر کی اتفاقی ملاقات کی کہانی نہیں تھی، یہ فارسی تہذیب کی روح تھی۔ زبانی کہانی کی وہ طاقت جو پورے دربار کو ہلا دے، اور ایک عورت کی وہ ہمت جس نے اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ اب جو سوال ذہن میں گھومتا ہے وہ یہ ہے، نہ جانے کتنی ایسی داستانیں ہمیشہ کے لیے کھو گئیں صرف اس لیے کہ کوئی شہزادی انہیں لکھنے نہیں بیٹھی۔ اب بتائیں، کیا آپ کے خیال میں زبانی روایات کو محفوظ کرنا ضروری ہے یا وقت کے ساتھ بھول جانا بھی فطری ہے؟ 1921 کی ایک سرمئی صبح والیٹا شہر میں ایک وکیل نے موریٹی خاندان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جو خبر وہ لایا اس کا سایہ آنے والی کئی دہائیوں پر پڑنے والا تھا۔ ایک دور کا رشتہ دار جسے یہ لوگ مشکل سے پہچانتے تھے 15 سال پہلے مر چکا تھا، اور چھوڑ گیا تھا ایک پرانا یونانی مٹکا۔ دیکھنے میں بلا کا خوبصورت، اس پر تاجروں اور کشتیوں کی تصویریں بنی تھیں، لیکن جیسے ہی خاندان نے اسے ہاتھ میں اٹھایا دل نے کہا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ 3 سال تک وہ مٹکا بیٹھک میں رکھا رہا جیسے کوئی ایسا سوال جو کوئی پوچھنا نہیں چاہتا۔ پھر بڑے بیٹے جارجیو پر جوئے کے قرضے چڑھ گئے۔ اس نے بیچنے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز کے ایک کلکٹر نے فوراً خریدا، ایسے جیسے وہ برسوں سے اسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ جارجیو اس موسم خزاں میں مالٹا چھوڑ کر مصر روانہ ہوا۔ اس کا جہاز کبھی پہنچا ہی نہیں، کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ بیوی کو آج تک کچھ معلوم نہ ہوا۔ ایتھنز والا کلکٹر اس مٹکے کا دیوانہ ہو گیا۔ پڑوسی دیکھتے وہ لالٹین کی روشنی میں گھنٹوں اس پر لکھی عبارتیں نقل کرتا بڑبڑاتا رہتا۔ 7 سال بعد اسے اس کے کمرے میں پایا گیا، عمر سے کہیں زیادہ بوڑھا، دماغ بالکل خالی۔ باقی زندگی خاموشی میں گزری، بس کبھی کبھی ہوا میں ہاتھ بڑھاتا جیسے کوئی ایسی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو جو صرف اسے نظر آتی تھی۔ مرنے کے بعد مٹکا برسلز کے ایک عجائب گھر پہنچا، محفوظ درج سلامت 1940 تک۔ پھر جنگ آئی، قبضہ ہوا، لوٹ مار مچی، اور وہ مٹکا بس غائب ہو گیا، ہوا میں اڑ گیا، آج تک نہیں ملا۔ لیکن یہاں سے معاملہ اور بھی عجیب ہو جاتا ہے۔ برسوں بعد بھی کلکٹر بتاتے رہے کہ انہوں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، وہی مٹکا یورپ کے اندھیرے بازاروں میں گھومتا ہوا، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہوا، کبھی ایک جگہ نہ ٹکتا۔ تو آخر اس وراثت میں تھا کیا؟ جارجیو کا جہاز کہاں گیا؟ اور وہ مٹکا آج کہاں ہے؟ اگر آپ نے کبھی اس کے بارے میں کچھ سنا ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ 1975 کی گرمیوں میں فالموتے بے کے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں نے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے گہرے پانیوں میں کچھ دیکھا تھا،
एक ऐसी मखलूक जिसकी गर्दन लंबी थी, जिस्म सेल मछली जैसा सिया और जो लहरों के दरमियान से गुजर रही थी। उन्होंने इसे नाम दिया मोरगौर, कार्नश समंदर का देव। और देखते ही देखते पूरे साहिली गांव में इसी का चर्चा था। मगर उस कहानी की जुड़ें और भी गहरी थीं। बूढ़े माहीगीर कहते थे कि ये मखलूक पहली जंग अजीम के ज़माने में नमूदार हुई थी, जब एक जर्मन आबदोज ने बरतानवी बहरी जहाज को डुबो दिया था। उनके बयानात में ये 60 फुट लंबा मगरमच्छ नुमा जानवर था, जालीदार पंजे और ऐसी दाम जो किसी कुश्ती को पिल भर में तिनकों की तरह बखेर दे। चाहे लंबी गर्दन वाली मखलूक हो या कदीम रींगने वाला जानवर, पैगाम एक ही था, उन पानियों में कुछ गड़बड़ है। 1976 में एक फोटोग्राफर ने फालमोते पैकेट अखबार को एक तस्वीर भेजी। तस्वीर में समंदर की सतह से उभरता हुआ एक सियाह सांप जैसा सर नजर आ रहा था, गर्दन तनी हुई, और साफ जाहिर था कि ये कोई ना कोई चीज जरूर है। फोटोग्राफर ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा, मेरा नाम मेरी एफ है। चंद हफ्तों में ये खबर चारों तरफ फैल गई। मकामी माहीगीरों ने खाली जालों का इल्जाम इसी देव पर लगा दिया। सयाह इसे देखने आने लगे। मोरगौर लोगों के जहनों में हकीकत बन गया, क्योंकि वो इसे अखबार में अपनी आंखों से देख चुके थे। फिर मामला और भी दिलचस्प हो गया। कुछ महीनों बाद जॉन काक और जॉर्ज वनिकोम्ब नामी 2 माहीगीरों ने लीजरूड पॉइंट के करीब अपनी आंखों से इसे देखने का दावा किया। रिपोर्टें आती रहीं। साइंसदान आ गए। पुरअसरार मखलूकात के माहिर पहुंच गए। ये दास्तान इतनी फैल गई कि बस पूछो मत। मगर मसला ये था कि कोई दोबारा इसे कैमरे में कैद ना कर सका। साफ तस्वीर नहीं, पक्का सबूत नहीं। तस्वीरें धुंधली रहें, गवाहियां सुनी सुनाई। और फिर बरसों बाद मुहक्किकीन ने एक ऐसी बात दरियाफ्त की जिसने सब कुछ बदल दिया। मोरगौर के पीछे गालिबन टोनी शेल्स था, एक कार्नश अदीब और शरारती शख्स जो इस पूरे अरसे में वहीं मौजूद था। इसी ने ये नाम घड़ा था। शायद तस्वीरें भी इसी ने बनाई थीं। पूरी कहानी एक ऐसा झांसा थी जिसने पूरे इलाके को बरसों बेवकूफ़ बनाए रखा। मगर एक सवाल है जो आज भी ज़हन में खटकता है, अगर शेल्स ने ये सब बनाया था तो जॉन काक और जॉर्ज वनिकोम्ब ने आखिर किया देखा था? क्या इस झूठ ने अनजाने में किसी ऐसी चीज़ को जगा दिया जो पहले से वहां मौजूद थी? अब फिर कहानी इतनी सच्ची लगने लगी कि लोगों ने वही देखना शुरू कर दिया जो वो देखना चाहते थे। अब बताएं, फालमोते बे में असल में क्या हुआ था? मेरी कैथरीन की खामोश दास्तान। 14 अक्टूबर 1894 की बात है। साहिल के करीब मछिरे कश्तियां चला रहे थे जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। मेरी कैथरीन, जो 11 दिन से लापता थी, समंदर में 3 मील दूर तीर रही थी। जाल पानी में डूबे हुए थे, पकड़ी हुई मछली सो चुकी थी। लेकिन असल बात यह है कि कप्तान वेब की डायरी, जो खिली पड़ी मिली, इसमें आने वाले 2 दिनों की तारीखें लिखी थीं। वो दिन जो अभी आए ही नहीं थे। बंदरगाह के अफसर की रिपोर्ट में सब कुछ बिल्कुल मामूल का लगता था। कमरे जूं के तुम, खाना पीना सब मौजूद, कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं। ऐसा लगता था जैसे सारे मल्लाह बस एक लम्हे के लिए बाहर गए और फिर कभी वापस न आए। मगर लाइट हाउस के चौकीदार सैमुअल मॉरिस ने कुछ और ही कहानी सुनाई। इसने कसम खाई कि 3 अक्टूबर की रात इसने अपनी दूरबीन से देखा, मेरी कैथरीन का अगला मिस्तोल आग की लपेट में था। सिया पानी पर नारंगी शोले भड़क रहे थे। तकरीबन 1 घंटा जलते रहे और फिर बस गायब हुआ में तहलील हो गए। जब जहाज को बंदरगाह लाया गया तो जलने का एक निशान तक नहीं था। एक तिनका भी नहीं झुलसा था। कप्तान की आखिरी तहरीर सबसे अजीब थी। जूं-जूं लिखता गया, हाथ कांपता गया, जैसे कोई खौफ के मारे लिख रहा हो। आखिरी अल्फाज थे, आसमान से रोशनी उतरी, सब ने देखी, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, ये हमारा अपना फैसला नहीं। इसके बाद बस खराशें, बेतरतीब, जैसे किसी ने गुस्से आ दहशत में कलम घसीटा हो। मेरी कैथरीन ब्लैकस्टोन बंदरगाह में ठीक 1 हफ्ता लंगर अंदाज रही। 3 मजदूरों को पहरे पर लगाया गया। आधी रात के करीब तीनों को एक साथ नींद ने दबोच लिया, ऐसी भारी नींद जिसकी कोई वजह न थी। जब आँख खिली तो जहाज गायब था। जंजीरें अपनी जगह बंधी थीं। अंधेरी रात में बगैर किसी आहट के जहाज हुआ हो गया था। कप्तान के मल्लाहों का कभी कोई सुराग ना मिला। डायरी भी जहाज के साथ गायब हो गई,
वो तमाम नामुमकिन तारीखें, वो सारे राज, सब के सब। तो बताएं, इस रात समंदर में आखिर हुआ क्या था? सैमुअल मॉरिस ने अपनी दूरबीन से सच में किया देखा? और मेरी कैथरीन आखिर गई कहाँ? आपके ख्याल में इस जहाज का क्या हुआ? कोई कुदरती वजह थी या कुछ और? नीचे बताएं। चर्च पियोरेल की सरगोशी। सन 1912 की बात है। इंग्लिस्तान में एक पुरानी हवेली थी, चर्च पियोरेल। इस घर में भूत इतने आम हो चुके थे कि वहां रहने वाले खानदान ने डरना ही छोड़ दिया था। ये नहीं कि भूत चले गए थे, नहीं जी, वो तो रोज आते थे। लेकिन पियोरेल खानदान उन्हें ऐसे देखता जैसे कोई परेशान करने वाला रिश्तेदार हो, नजर आए, दो बातें हों और बस। इस हवेली की लंबी गैलरी में एक खास रूह रहती थी। एक औरत नीले रंग के लिबास में, इतने खास नीले रंग में कि खानदान ने इसे नीली बीबी का नाम दे दिया था। वो बागीचे में जाहिर होती गैलरी में गिवमत, और जो भी उन्हें देखता वो सीधा इसकी आंखों में देखकर घर की तरफ उंगली उठाती, बेचैनी से, इल्तिजा से, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ नहीं। खानदान का ख्याल था कि ये उनकी पुरानी फूफी बारबरा है, जो 200 साल पहले कुछ कहना चाहती थी, कोई राज, कोई एतराफ़। लेकिन जब भी कोई पूछता, फूफी जान क्या बात है, क्या चाहिए आपको, वो बस गायब हो जाती। और फिर एक दिन वो इशारा बंद हो गया। नीली बीबी आती रहे, घूमती रहे, लेकिन वो बेचैन उंगली कभी ना उठी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे जो बात सीने में दबी थी वो आखिरकार कह दी गई। ना कोई दस्तावेज मिली, ना कोई राज सामने आया। नीली बीबी ने खामोशी से अपना बोझ रख दिया। आप बताएं, वो किससे मिली होंगी और आखिर क्या कहा होगा उन्होंने? सरगोशियों वाली फाइल, एक अजीब गुमशुदगी। सन 1884 की बात है। न्यूयॉर्क शहर में एक जासूस को एक गुमशुदगी का मामला सुलझाने का मौका मिला, और वो भी हफ्तों की मेहनत से नहीं, बल्कि एक गलती से। एक गलत सीली, एक टूटी हुई चीज, और अचानक सब कुछ सामने आ गया। इस जमाने का शहर बिल्कुल ऐसा था जैसे पुरानी लाहौर की गलियां, तंग भीड़ भाड़ और हर तरफ उलझन। किराए के मकानों में 4-4, 5-5 मंजिलें, गैस की लालटेनों की रोशनी में लंबे लंबे साए। जासूस कई दिनों से झूठे सरागों के पीछे भाग रहा था, थका हुआ, नींद उड़ी हुई, दिमाग कहीं और। गुमशुदा शख्स मिस्टर ब्लैक इसी इमारत से गायब हुआ था जहां जासूस खुद रहता था। इस रात थकावट में बेख्याली से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो एक मंजिल ऊपर निकल गया। राहदारी मुख्तलिफ लगी, ज्यादा दरवाजे अलग तरतीब, मगर ध्यान नहीं गया। जब एक बंद दरवाजे का हाथा थामा और दरवाजा ना खुला, तब होश आया। ये इसकी मंजिल नहीं थी। शर्मिंदगी तो हुई, वो वाली जो तब होती है जब जिस्म अपने आप चलता रहे और दिमाग पीछे रह जाए, मगर जैसे ही पलटा, पांव के नीचे कुछ आया, कुछ छोटा सा, और एक आवाज के साथ टूट गया। वो झुका, धुंधली रोशनी में देखा एक नाजुक चीज के टुकड़े, और पहचान गया ये ब्लैक की थी। ब्लैक की चीज इसकी अपनी मंजिल से ठीक ऊपर वाली राहदारी में क्या कर रही थी? कितने दिनों से पड़ी थी, और इतनी तलाश के बावजूद किसी को क्यों नहीं मिली? बस यही टूटी हुई चीज सब कुछ बदल गई। चंद घंटों में मामला खिल गया। मगर जो बात किसी रिकॉर्ड में नहीं, वो ये कि वो चीज थी क्या? ब्लैक के पास क्यों थी? और इस बंद कमरे में आखिर क्या मिला होगा? आप बताएं, आपके ख्याल में इस कमरे के अंदर क्या था? सरगोशियों की फाइल, मिल्डॉन का साया की बात है। शिकागो ब्लैक हॉक्स ने नेशनल हॉकी लीग में अपना पहला सीजन मुकम्मल किया था। टीम बुरी नहीं थी, आगे खेलने वाले खिलाड़ी लीग के बेहतरीन स्कोरों में शुमार होते थे। लेकिन जब वो बॉस्टन से प्ले ऑफ में हार गए तो मालिक फ्रेडरिक मैकलाफ्लिन ने हेड कोच को निकाल बाहर किया। इस कोच का नाम था पेट मिल्डॉन, और कहानी ये है कि मिल्डॉन इस दफ्तर से निकलते वक्त पूरी टीम पर बद्दुआ दे गया। ब्लैक हॉक्स एक नई टीम थी, नई लीग में, इस शहर में जो खेल का दीवाना था। शिकागो उन दिनों खूब चमक रहा था, जाज, पैसा, जोश और खुरूश। टीम में असल टैलेंट था। सब कहते थे ये छा जाएंगे, लेकिन जैसे किसी ने पांव पकड़ लिए हो। अगले 40 साल तक ब्लैक हॉक्स ने एक बार भी अपनी डिवीजन ने पहली पोजीशन हासिल न की।
बद्दुआ जैसा कि मशहूर है सीधी मिल्डॉन के मुंह से निकली थी। इसने मैकलाफ्लिन से कहा था, मुझे निकालो मेजर और तुम कभी पहले नहीं आओगे। मैं इस टीम पर ऐसा साया डालूंगा जो क़यामत तक नहीं उठेगा। फिर वो चला गया और हार का सिलसिला शुरू हो गया। सीजन पर सीजन, दहाई पर दहाई यही डेरा चलता रहा। टीम करीब आती, प्ले ऑफ खेलती, कभी कभी स्टेनले कप भी जीत लेती, लेकिन पहली पोजीशन जैसे वहां ताल्लू लगा हो। शायकीन आपस में काना पेविस करने लगे, खेल की सहाफ़ी गिनती रखने लगे। 50 की दहाई तक तो ये बद्दुआ मशहूर से बदनाम हो चुकी थी। लोग सचमुच यकीन रखते थे कि पेट मिल्डॉन ने ब्लैक हॉक्स को जकड़ लिया है। लेकिन यहां से कहानी असल रंग दिखाती है। मैं बद्दुआ टूटने के तकरीबन 25 साल बाद जिम कोलमैन नामी एक सहाफ़ी ने सच उगा दिया। ये सब उसने खुद घड़ा था। 50 की दहाई में अखबार की डेडलाइन पूरी करने के लिए और एक साथी को ये साबित करने के लिए कि खेल के शायकीन कुछ भी मान लेते हैं, इसने यह किस्सा बना डाला। एक झूठी कहानी, और पूरा शहर यकीन कर बैठा कि उनकी टीम पर जादू हो गया है। ब्लैक हॉक्स ने आखिरकार में पहली पोजीशन हासिल की। बद्दुआ टूट गई। आज शायद कभी थी ही नहीं। तो सोचें ज़रा, क्या 40 साल की नाकामी इसलिए हुई क्योंकि खिलाड़ी और शायकीन एक झूठी बद्दुआ पर दिल से यकीन रखते थे? अब फिर ये बद्दुआ सिर्फ इसलिए सच बनी क्योंकि किसी को एक अच्छी कहानी चाहिए थी। आपके ख्याल में यकीन खुद ही तकदीर बदल सकता है? ये सब महज इत्तेफाक था। शहरजाद, वो औरत जिसने कहानियों से मौत को हराया। 9वीं सदी की बात है। इस्लामी दुनिया के किसी गोशे में एक औरत को सुबह होने से पहले मौत का सामना था। इसके पास सिर्फ एक हथियार था, इसकी अपनी आवाज़। और अगली 1000 रातों में इसने इस आवाज़ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि पूरी ममलुकत की औरतों को भी। ये थी शहरजाद। बादशाह शहरयार को धोखे ने पागल कर दिया था। इसकी पहली बीवी ने बेवफाई की और वो जख्म अंदर ही अंदर सड़ता रहा, एक ऐसी तारीकी में बदल गया जो खून की प्यासी हो गई। इसने हुक्म दिया कि हर रात एक कनवारी लड़की से शादी होगी और सुबह होते ही इसे कत्ल कर दिया जाएगा। रात पर रात गुजरती रही, महल का जल्लाद इंतजार में खड़ा रहता। लोग गलियों में सरगोशियां करते, माँ बाप अपनी बेटियां छुपाते फिरते। जब शहजाद की बारी आई तो वो भाग नहीं रही थी। वो जानबूझकर इस जाल में कदम रख रही थी। इसकी छोटी बहन दीनारजाद भी इस मंसूबे का हिस्सा थी। पहली रात जब बादशाह वही करने वाला था जो 100 बार कर चुका था, शहरजाद ने एक गुजारिश की, बस एक कहानी अपनी बहन को सुनाने दो, आखिरी तोहफे के तौर पर। बादशाह मान गया। शायद इसे लगा क्या फर्क पड़ता है। और फिर शहरजाद ने बोलना शुरू किया। एक ताजिर, एक जिन, एक लानत, एक ऐसा राज जो एक रात में हल नहीं हो सकता था। जैसे ही महल की दीवारों पर पहली रोशनी फैली, शहरजाद ने कहानी बीच में रोक दी। कहानी अधूरी लटकती रही। बादशाह बेचैन हो गया, आगे क्या हुआ? इसने एक रात और दी, फिर एक और, फिर एक और। 1001 रातों तक वो कहानियों के अंदर कहानियां सुनाती रही, हर एक ऐसी भूल बिलियां की तरह जिसमें उतरते चले जाओ। अला अल-दीन का चिराग, सिंदबाद के सफ़र, मोहब्बत और जादू और इंसाफ की दास्तानें आहिस्ता आहिस्ता इस टूटे हुए ज़हन में उतरती गईं। इसने हर कहानी सोच समझ कर चुनी, जहां औरतें होशियार निकलें, जहां रहम जीता, जहां इंतकाम ने इंतकाम लेने वाले को ही निगल लिया। आखिर में कुछ बदल चुका था। जिस बादशाह ने सैकड़ों औरतों को कत्ल किया था, इसने आखिरी सुबह शहरजाद को नहीं मारा, बल्कि इसे अपनी मलिका बनाया, मजलूम के तौर पर नहीं बल्कि बराबर के साथी के तौर पर। ममलुकत की बेटियां महफूज हो गईं। लेकिन मुअर्रिखीन आज तक एक सवाल पर मुत्तफिक नहीं हो सके, क्या शहरजाद वाकई कोई हकीकी औरत थी जिसकी कहानी वक्त के साथ दास्तान बन गई? वो हमेशा से एक अलामत थी, ये दिखाने के लिए कि जो बात और किसी तरह नहीं कही जा सकती थी वो ये थी कि एक औरत का दिमाग बादशाह की तलवार से भी ताकतवर हो सकता है। आप बताएं, आपके नज़दीक शहरजाद हकीकत थी या महज एक कहानी? ख्वा शुरूर, हज़ारों को कुचलने वाला कदीम मेसोपोटामिया में, जब तलवारें और नेज़े भी नहीं थे, समीरी लोग एक ऐसे हथियार की बात करते थे जो आज भी ज़हन को चुकरा देता है। उसका नाम था शरूर, यानी हज़ारों को कुचलने वाला। लेकिन ये कोई आम गर्ज नहीं था।
4,000 साल से ज़्यादा पुरानी मिट्टी की तख्तियों पर लिखा है कि ये हथियार उड़ सकता था, बोल सकता था और सिर्फ देवता निनोरता का हुक्म मानता था। ज़रा तसव्वुर करें, ऐसी अलैहिस्सलाम से 3,500 साल पहले का वक्त। कुछ ईंटों के शहर, ऊंचे ऊंचे मंदिर और कातब जो गीली मिट्टी पर देवताओं के कारनामे लिख रहे हैं। उन्हीं तहरीरों में शरूर का जिक्र मिलता है, एक ऐसा हथियार जो मारता भी था और सूझता भी था। समीरी रिज़मिया दास्तान लोगले में पूरी कहानी है। देवता निनवरता को एक खौफनाक आसिब ईसाग से लड़ना था। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि खुद अफरातफरी का रूप था, और उसके पीछे था कुर, पहाड़ों और पाताल का सांप देवता। दोनों को शक्स्त देनी थी। अब शरूर का कमाल देखें। यह हथियार हुक्म का इंतजार नहीं करता था। ये खुद आगे उड़ जाता, दुश्मन की खबर लाता और निनवरता को बताता कि वार कहाँ करना है और कैसे करना है। जासूस भी, कासिद भी और तलवार भी, सब एक साथ। सोचने वाली बात यह है कि समीरियों ने उसे जादुई नहीं कहा। उन्होंने साफ लिखा कि यह उड़ता है, सोचता है, फैसला करता है। ऐसे लोग जिनके पास बजली तक नहीं थी, वो किसी ऐसी चीज़ को क्या नाम देते जो खुद से चले और खुद से सूचे? शायद वही नाम जो उन्होंने दिया। बाद में आने वाली दास्तानों में भी उसकी झलक मिलती है। आर्थर की तलवार एक्सकेलिबर, सिल्टक कुस्सों के जिंदा हथियार। कुछ मुहक्किकीन कहते हैं ये तसव्वुर तिजारती रास्तों से मगरब तक पहुंचा और रंग बदलता गया। लेकिन असल सवाल आज भी जवाब मांगता है, क्या समीरियों ने वाकई कोई ऐसी चीज़ देखी थी जिसे वो समझ नहीं सके? या शरूर महज इस सूझ का इजहार था कि सबसे ताकतवर हथियार वो होता है जो अक्ल से चले? आप क्या समझते हैं? शरूर असल में था क्या? मामा इमेसा अनानया कैथरीन वेल्स के गर्म प्याले अक्टूबर 1867 में आई का एक मंगल का दिन था। मैसाचुसेट्स की विटमोर बंदरगाह में एक तिजारती जहाज आकर रुका। कैथरीन वेल्स उसके बादबान चीथड़ों में बदल चुके थे। बंदरगाह के निगरान एडमंड गरियोज ने कश्ती चलाई और जहाज तक पहुंचे। इंदर कदम रखा तो रूह कांप गई। ना कोई इंसान, ना लाश, ना लड़ाई का कोई निशान, बस एक सनसान खामोशी। डेक अभी तक समंदरी पानी से गेला था। नीचे जाकर देखा तो मिलाहों का सारा सामान जों का तूं रखा था। जोते, कपड़े और एक बच्चे की लकड़ी की गड़िया जो बिस्तर के पीछे फंसी हुई थी। मीठे पानी के तमाम पेपे बंद और महर बंद। कप्तान की मेज़ पर जहाज का रोजनामचा खुला पड़ा था। आखिरी अंदराज 3 दिन पुराना था। लिखा था, समंदर पुरस्कून है, हुआ साजगार है, कोई खतरे की बात नहीं। फिर गरियोज की नज़र डेक के पिछले हिस्से पर पड़ी। 14 प्याले, एक बिल्कुल गोल दायरे में सजे हुए। उसने हाथ लगाया। अभी तक गर्म थे। गरियोज ने यह सब अपनी ज़ाती डायरी में लिखा, जो आज भी शहर के रिकॉर्ड में महफूज है। लेकिन जब उसने सरकारी रिपोर्ट दाखिल की तो उन प्यालों का कोई जिक्र नहीं था। इसकी जगह लिखा था, जहाज में बेतरतीबी, जल्दी में फिरार के आसार। और बीमा कंपनी के कागजात में तो और भी आगे बढ़ गए, लड़ाई के शवाहद और किसी बड़े हादसे की अलामात। ये अल्फाज गरियोज ने कभी अपनी ज़बान से नहीं कहे थे। तलाश की महमें चलें, कुछ ना मिला। ना लाशें, ना मलबा, ना कश्तियाँ। कैथरीन वेल्स 7 साल तक उसी बंदरगाह में लंगर इंदाज रही। नमक भरी हुआ मैं आहिस्ता आहिस्ता गलती रही, यहाँ तक कि एक सर्दियों के तूफान ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। एडमंड गरियोज ने कभी नहीं बताया कि उसने अपनी कहानी क्यों बदली। मैं वो ये राज अपने साथ लेकर चला गया। और वो बच्चे की गड़िया 1933 में शहर के अजायब घर से गायब हो गई। आज तक कोई सुराग नहीं। तो बताएं, वो प्याले गर्म क्यों थे और गरियोज ने सच छिपाया क्यों? आपके ख्याल में इस रात जहाज पर क्या हुआ था? ये इस करपट असल में कोई तारीखी वाकया नहीं।
ये किसी पुराने पल्प फिक्शन से मुतासर कहानी का खाका लगता है। मैं ये नहीं कर सकता। किसी बनावटी कहानी को सच्चा राज बनाकर पेश करना, क्योंकि ये आपके चैनल की साख के साथ सरासर धोखा होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि उसे और ड्रामाई लोक कहानियाँ के अंदाज में ढाला जाए, तो बस इशारा करें, मैं उसे उसी रंग में पेश करूँगा। अगर आपके पास कोई असल तारीखी मामहान है, जैसे डियाटलोव पास का दिल दहला देने वाला वाक़या या मेरी सीलिस्ट जहाज़ का प्रासरार किस्सा, तो मुझे भेजें। मैं पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दूंगा। अगर उस कहानी के पीछे कोई असल वाक़या छिपा हुआ है, तो वो हकीकी हिस्सा मेरे साथ शेयर करें। आपको क्या चाहिए? सच्चा राज या ड्रामाई कहानी? हाँ। 2010 के शुरुआती सालों की बात है। कुछ फैलना शुरू हुआ। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में एक ऐसी ऐप जिस पर कोई नाम नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी। बस डाउनलोड्स फोल्डर में एक लफ्ज़ लिखा था, मालो। इंस्टॉल होते ही चंद घंटों में आपका फ़ोन तस्वीरें भेजना शुरू कर देता। इश्तिहार नहीं, स्पैम नहीं, तस्वीरें आपकी, उन्हीं जगहों से जहां आप अभी अभी गए होते। आपका कमरा, वो चाय की दुकान जहां आप सुबह बैठे थे, सिग्नल पर खड़ी आपकी गाड़ी, और हर तस्वीर के कोने में एक साया, इंतहाई लंबा, हड्डियों का ढांचा, सिर पर किसी जानवर की खोपड़ी, लंबे काले बाल, और नज़रें हमेशा आप पर। हर 3 से 6 घंटे बाद एक और तस्वीर, पुरानी नहीं, बिल्कुल अभी की। दूसरे दिन वो साया करीब आ चुका होता। तीसरे दिन वो आपके बिल्कुल पहलू में खड़ा होता, जैसे कोई आपके कमरे में ही खड़े होकर तस्वीर खींच रहा हो। लोगों ने ऐप डिलीट करने की कोशिश की, मगर वो वापस आ जाती, छिप जाती, जो चाहती करती। फिर वो लम्हा आता जो लोगों को तोड़ कर रख देता। 72 घंटे के करीब लोग कुछ और रिपोर्ट करने लगे। आंख के कोने से कोई हरकत, आईने में एक अक्स जो वहां होना नहीं चाहिए था, खिड़की में एक लंबा पतला साया अंधेरे में से देखता हुआ। जिन लोगों पर ये बीती, वो कहते थे, एक अजीब सा एहसास बैठ जाता था दिल में कि अब वो अकेले नहीं हैं, कि कोई उन्हें देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और ये रखता नहीं था। बचने का एक ही तरीका था, 9 घंटे गुजरने से पहले फ़ोन तोड़ दो। उसके बाद तस्वीरें आना बंद हो जाते, मगर वो मौजूदगी, वो नहीं जाती थी। लोग फिर भी महसूस करते कि कोई देख रहा है, जैसे ऐप को अब फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं रही। और सबसे अजीब बात, इस ऐप का ऐप स्टोर में एक तारफ़ था, लिखा था, ये ऐप आपकी तन्हाई दूर करेगी, आपको एक मुस्तकिल साथी देगी। तो क्या ये ऐप बिल्कुल वैसे ही काम कर रही थी जैसा उसने वादा किया था? आप बताएं, अगर आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल हो जाती, तो आप क्या करते? हाँ, दी विस्पर्ड फाइल, ट्वाइलाइट ज़ोन, दी मूवीज़ 23 जुलाई 1982 की रात, कैलिफोर्निया के एक फिल्मी सेट पर अदाकार विक मोरो एक नकली वियतनामी गांव में कदम रखता है। रात ढलते ढलते 3 लोग इस दुनिया से जा चुके थे, और हॉलीवुड की तारीख हमेशा के लिए बदल गई। ट्वाइलाइट ज़ोन, दी मूवीज़, असल में एक खराज तहसीन थी। इस मशहूर अमेरिकी टीवी सीरीज़ को, जो हर कस्त में इंसानी फितरत का कोई न कोई तारिक पहलू सामने लाती थी। स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉन लैंड्स, जो डांटे, जॉर्ज मिलर, ये सब बड़े नाम थे। बजट भारी था, और तवक्कुआत आसमान को छू रही थीं। विक मोरो को जॉन लैंडस के हिस्से में मरकज़ी किरदार मिला था, एक ऐसा किरदार जो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता था। सीन कुछ यूँ था, विक मोरो 2 छोटे बच्चों को गोद में उठाए एक मैदान से गुजरता है, और ऊपर हेलीकॉप्टर के पंखे सिर्फ 30 फीट की ऊंचाई पर घूम रहे हैं। धमाके, शाले, खतरे का ड्रामा,
ये सब इस करपट में लिखा था, लेकिन जो खतरा असल में मंडला रहा था उसका किसी को अंदाजा न था। आइनी शाहदीन कहते हैं कि हेलीकॉप्टर का टील रोटर एक धमाके की जिद में आया। फिर वो लम्हा आया जो कोई नहीं भूला। हेलीकॉप्टर घूमता हुआ नीचे आया और विक मोरो के साथ दोनों बच्चे, मेका दिनले और रेनी शिन यीचन, इसके नीचे दब गए। वह बच्चे जिनका इतनी रात को सीट पर होना कानूनन ममनुआ था, और यही वो बात है जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। इन बच्चों को बाकायदा इजाजत नामे के बगैर काम पर लगाया गया था। कानून थे, ज़ाब्ते थे, लेकिन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। हेलीकॉप्टर इजाजत से कहीं ज्यादा नीचे अड़ रहा था। कोई नहीं था जो घड़ी देखकर ये यकीनी बनाता कि बच्चे कानूनी वक्त से ज्यादा काम न करें। बस पैसा था, शहरत थी और लापरवाही थी। मुकदमे चले, फर्द जर्म गायद हुई, फिर वापस ले ली गई। कोई सज़ा न हुई, लेकिन फ़िल्मी सनात अब आंखें बंद नहीं कर सकती थी। नए हिफाजती क़वानीन बने, बच्चों के लिए सख्त ज़ाब्ते आए, हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के लिए नई हदूद मुकर्रर हुए। फ़िल्म रिलीज़ हुई, लेकिन उसे स्पीलबर्ग की हुनरमंदी के लिए नहीं याद किया जाता। उसे याद किया जाता है उन 3 जानों के लिए जो उसे बनाने में गईं। और आज भी ये सवाल जहन में गूंजता है, हम जिन हिफाजती असूलों को आज मामूल समझते हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस रात 3 बेगुनाह लोग मारे गए? आप बताएं, क्या कोई भी फिल्म, कोई भी कहानी किसी इंसानी जान की कीमत पर बनाई जा सकती है? मेक्सिको के ऊंचे पहाड़ों में, जहां हुआ पतली और ठंडी होती है, एज़टेक लोगों ने एक हैरानकुन बात दरियाफ्त की। मुर्दे वहां उस तरह नहीं सड़ते थे जैसे नीचे मैदानों में सड़ते हैं। उन ऊंची, खशक जगहों पर छोड़ी गई लाशें बस सूख जाती थीं। गोशत हड्डियों से चपक जाता, खाल चमड़े की तरह भूरी पड़ जाती, और एज़टेक लोग ये देखकर समझे, ये कोई मामूली बात नहीं, ये तो मुक़द्दस है। फिर उन्होंने जानबूझकर अपने मुर्दों को उसी तरह इज्जत देनी शुरू की। जब कोई बादशाह मरता या मैदानी जंग में कोई सिपाही गिरता, तो लाश को बड़े सलीके से एक ख़ास अंदाज में बिठाया जाता। मसरियों की तरह लिटाया नहीं जाता था, बल्कि घटनों में समेटकर बिठाया जाता, जैसे वो शख्स अभी भी मौजूद हो, अभी भी देख रहा हो। फिर उसे कपड़े में लपेटा जाता, रस्सी से बांधा जाता और एक बुने हुए गट्ठड़ में रख दिया जाता। आगे की तरफ एक रस्मी नकाब लगाया जाता, और ये गट्ठड़ किसी कब्र में नहीं छिपाए जाते थे, घरों में रखे जाते थे, तहवारों पर बाहर निकाले जाते थे, खानदान का हिस्सा समझे जाते थे। 1800 की दहाई में यूरोपी लोग इन गट्ठड़ों के पीछे दीवाने हो गए। छोटे, आसानी से उठाने के काबिल और सच में सदियों पुराने। यूरोप और अमेरिका में नुमाइशें लगने लगीं, एज़टेक मुमिया के नाम से। अजायब घर एक दूसरे से आगे बढ़कर उन्हें खरीदने लगे। ये मुमिया मशहूर हस्तियों की तरह बन गईं, शीशे के पीछे रखी गईं, पढ़ी गईं, और कभी कभी तो सामीन के सामने खोलकर दिखाई गईं। लोग बस देखते रह जाते थे। ये एक खोई हुई तहजीब का सबूत था, जिसे वक्त ने खुद महफूज कर लिया था। लेकिन यहाँ मामला पेचीदा हो जाता है। वो मशहूर मुमिया जो नुमाइशों में थीं, जिन्होंने ये सारा शौक जगाया, शायद जानबूझकर मुम्मी नहीं की गई थीं। पहाड़ों की खशक हुआ ने खुद ये काम कर दिया था। कपड़े और नकाब बाद में लगाए गए, हाँ, लेकिन असल हिफाजत, वो तो कुदरत का कमाल था, किसी रस्म का नहीं। या फिर था, एज़टेक लोग सदियों से उन्हीं पहाड़ों में रहते आए थे। वो खूब जानते थे कि उनका माहौल लाशों को कैसे महफूज रखता है। तो क्या उन्होंने ये ऊंची जगहें इसलिए चुने क्योंकि वो जानते थे क्या होगा? क्या उन्होंने जगह, वक्त और अंदाज से ये सब इंजीनियर किया? तारीखी रिकॉर्ड खामोश है। हस्पानवियों ने फतह के बाद एज़टेक की ज़्यादातर दस्तावेज़ात जला दी थीं। जो कुछ हमें मालूम है वो बस टुकड़ों से मिला है, उन्हीं गठड़ों से और चंद बची खच्ची तहरीरों से। तो सवाल अभी भी वहीं खड़ा है,
क्या ये मुमियाँ किसी गहरे इल्म और सूची समझी कोशिश का नतीजा थीं? या एज़टेक लोगों ने बस वो देखा जो कुदरत पहले से कर रही थी और उसे इज्जत देने का फैसला किया? और अगर वो वाकई जानते थे, अगर उन्हें हिफाजत की साइंस समझ आती थी, तो और क्या कुछ जानते थे जो हम हमेशा के लिए खो चुके हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या ये कुदरत का इत्तेफाक था? या एज़टेक का वो वादी बेसरों की एक सरगोशी कनाडा के शमाल मगरबी इलाकों में एक ऐसी वादी है जहां इतनी प्रासरार मौतें हुई हैं कि मकामी लोग आज भी अकेले वहां जाने से डरते हैं। साउथ नाहानी दरिया, जो 1 मील ऊंची चट्टानों के दरमियान बहता है, 1 सदी से ज्यादा अरसे से एक ही नाम से जाना जाता है, बेसरों की वादी। और ये कोई लोक कहानी नहीं, ये असल लाशों की बात है। येलोनाइफ से 500 किलोमीटर मगरब में ये दरिया शुमाली अमेरिका के सबसे अजाड़ कोनों में से एक में बहता है। देने कबीले के लोग सदियों से यहाँ रहे। वो उसे नाहा दीहे कहते थे, यानी ज़मीन का दरिया। उन्हें उसका मजाज मालूम था, उसकी हदियाँ तोड़ देने वाली ठंडक मालूम थी, इसका गुस्सा मालूम था। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब सोने की तलाश में मुसाफिर आने लगे, तो कुछ ऐसा होने लगा जो आज तक समझ नहीं आया। 1904 में मैकलोड ब्रादरान, 2 तजुर्बाकार मुहिम जो बगैर किसी निशान के गायब हो गए। तलाशी दस्तों को उनका कैंप मिला, सामान वहीं रखा था, कश्ती किनारे पर थी, खाना हाथ नहीं लगा था, लड़ाई का कोई निशान नहीं, लाश नहीं, बस एक डरावना खालीपन। फिर 1908 में एक शिकारी अल्बर्ट दरिया के ऊपरी हिस्से में गया। 2 साल बाद वापस आया तो भौंका, ठिठरा हुआ और टूटे हुए जमलों में कुछ बड़बड़ाता था। उसने कभी नहीं बताया कि उसने क्या देखा था। फिर 1920 की दहाई में दरिया के किनारे 2 लाशें मिले, बगैर सिरों के। पुलिस आई, तहकीकात हुई। कभी कहा गया रीछ ने मारा, कभी कहा गोली लगी, कभी कहा लाशें हफ्तों पानी में थीं, कभी कहा बिल्कुल ताज़ा थीं। सरकारी कागजात आज भी अधूरे और मुतजाद हैं। 1979 में वेर नामी शख्स का सिर कटा हुआ मिला। एक अमरीकी शेबेक की मौत की वजह कभी वाज़ेह न हुई। हर केस खामोशी से बंद हो गया। हर बार सवाल बाकी रहे। आज ये वादी यूनेस्को का आलमी वर्था और कौमी पार्क है। सियाह गर्मियों में उन 1000 मीटर ऊंची घाटियों में कश्तियां चलाते हैं, करोड़ों साल पुरानी चट्टानों के अजायब देखते हैं। लेकिन मकामी लोग आज भी उसे बेसरों की वादी ही कहते हैं। और जो लोग वहाँ की असल बातें जानते हैं, वो आहिस्ता से कहते हैं, ये दरिया किसी को आसानी से जाने नहीं देता। तो आप बताएं, क्या वहाँ कोई कातिल था जो दहाइयों तक उन चट्टानों में छिपा रहा? या ये वादी खुद ही ऐसी थी जहाँ से जिंदा लौटना मुमकिन नहीं था? नीचे बताएं, आप क्या सोचते हैं? इस हफ्ते की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आएं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गई। रोज़ाना नई कहानियाँ और हर इतवार नया कंपाइलेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।